students and my dear friends. Today we will going to learn the topic of the Negotiable Instrument Act of 1881. So in this act, we have to understand what is the negotiable instrument and what are their implications. So first of all, there is introduction. We have to understand what is the introduction of the Negotiable Instrument Act of 1881. So act to define and amend the law relating to promissory note, bill of exchange and check. What it says, it defines and amend the law relating to promissory note, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो इसमें कहता है ये एक्ट क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, अमेंड कर रहा है किस लॉ को, लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेसिकली डील्स विद द प्रोमिसरी नोट, bill of exchange and checks. This is the main three things through which the Negotiable Instrument Act of 1881 has been provisioned. So the act is divided into 148 sections. How many sections are there? There is 148 section divided into 17 chapters. So we have to learn the 17 chapters and 148 sections and the schedule which is repealed. What it says? The schedule which is repealed. Now the Negotiable Instrument Act is actually a written document. It specifies payment to a specific person or the bearer of the instrument at a specific date. So what it says, negotiable instruments is actually a written document. What it says, it's a written document. It specifies payment. What it specifies, it specifies payment to a specific person. ये स्पेसिफाई करता है एकदम थोरली, वो पॉइंट आउट करता है टू अ स्पेसिफिक पर्सन और द बेयरर, विच पर्सन, द बेयरर और द ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट अ स्पेसिफिक डेट। वो दूसरा चीज़ स्पेसिफाई करता है स्पेसिफिक डेट को, कौन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इट सेज, इट्स अ डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सो विच प्रोमिसेस द पेमेंट ऑफ मनी। कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इट सेज, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है दैट इट प्रोमिसेस द पेमेंट ऑफ मनी विदाउट एनी कंडीशन, और विदाउट क्या है, देर इज नो कंडीशन लाइंग ऑन द पेमेंट ऑफ मनी, सो विच मे बी पेड आइदर ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट। सो इट सेज that it may be paid. What it says, says that it may be paid either on demand whenever there is a need or demand or at a future date. तो जब भी डिमांड अगर होगा पेमेंट का तो उसमें लिखा होगा और कोई फ्यूचर डेट दिया होगा जिसमें से क्या होगा, पेमेंट वहाँ पे होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक टाइप का डॉक्यूमेंट है और क्या कंसिस्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कंसिस्ट करता है। Now, the term can have a different meaning. The term can have different meanings depending upon what law is being applied and in which country and context it is used. तो यहाँ पे क्लियरली है कि डिफरेंट मीनिंग होते हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट लॉ इज़ बीइंग अप्लाइड, कौन सा लॉ इस पे अप्लाइड हो रहा है एंड विच कंट्री एंड कॉन्टेक्स्ट इट इज़ यूज्ड। तो ये इंडिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट पे हो रहा है और कहाँ पे यूज्ड हो रहा है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 का यही है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो फर्दर आगे जाने से पहले अब हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। So the Negotiable Instrument Act of 1881 was passed and assented on 9th of December 1881. When it was passed? It was passed and assented on 9th of December 1881. So assented means giving declaration that these instruments can be applied to whole of the country on 18th of December, 9th of December 1881. The act came into force on 1st of March 1882. When it came into force? It came into force on 1882. So this act was enacted by the Imperial Legislative Council India. तो किसने इसको इनैक्ट किया था? इसको इनैक्ट किया था Imperial Legislative Council India. Now, earlier to the enactment of 1881 Act, the provision of the English Negotiable Instrument Act were applicable in India. तो इसके पहले जब ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था तो उसके पहले कौन सा लॉ हम लोग पर अबाइडिंग था? इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसके पहले कौन सा एक्ट था 1881 के पहले? तो इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और यही इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या हो गया था, सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ में एक्ट ऑफ 1881 बना था। सो इट वाज एक्सेप्टेड
after certain modifications. The Act of 1881 has been amended from time to time to ensure and enhance what it says, to ensure and enhance the trust of negotiable instruments. सो अगर ट्रस्ट बना के चलना है तो इसमें क्या होगा, लगातार हम लोगों को अमेंड करते रहना है टाइम टू टाइम, जिस तरह डिमांड होगा इस इंस्ट्रूमेंट को बदलने का, उसके बाद वो मॉडिफिकेशंस करके और फिर क्या करते हैं, इसे लागू कर दिया जाता है, जिससे इसकी अधिमत्ता बनी रहे. Now we will discuss the applicability of this act. So applicability discuss on the part of section 1. So section 1 of the act specifically provides for the provision of its extent and commencement. What it says, it specifically provides provision of its extent and commencement. It states that local extent, saving of uses relating to hundis, etc. सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, और पूरे होल ऑफ इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी पाई जाती है. नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881. So it was enacted with the aim to achieve various objects. What it says, it is enacted as an aim to achieve. What it achieved? The various objects which are discussed below. So first of all, to provide for the legal protection to different mercantile instrument. What it says, it provide for the legal protection. एक तरह का legal protection है, जितने mercantile instruments जो भी sale purchase होते हैं उसके लिए क्या है, एक legal instrument है. So it also provide for the procedure in case of obligations. ये क्या करता है? It also provide for the procedure in case of obligations. जो भी obligations होंगे उसके लिए एक procedure provide करता है, which have to discharge under instruments. But it says it have to discharge under instrument. जो भी provisions लिखे हुए हैं उसी के अंतर्गत वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, उसे निष्पादित किया जाएगा. So it describes the liabilities of the parties, और उसमें clearly mention होता है कि what are the liabilities of the parties, और वही उस पर लागू होता है Negotiable Instrument Act पे. Fourth one is that it provides for the transparency. What it says, it provide for the transparency. Now in system, किसमें ट्रांसपेरेंसी होगा, तो सिस्टम में होगा. और टू लीगलाइज द सिस्टम, सिस्टम को लीगलाइज कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, बाई विच इंस्ट्रूमेंट कुड पास फ्रॉम हैंड टू हैंड बाई नेगोशिएशंस लाइक एनी अदर गुड्स. तो यहाँ पे जितने भी नेगोशिएशंस होंगे वो क्या होंगे, हैंड टू हैंड पास कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. Fifth point says that it gives possession. What it gives? It gives possession of the instrument as well as right to property. So possession negotiable instrument act का एक पार्ट है जो कि देता है किसके लिए, right to property के लिए. Now after reading all this thing, now we can define the negotiable instrument as, in section 13 of the act, it means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or a bearer. So what it says, it is a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or bearer. So it define the negotiable instrument is defined under section 30. Also the other definition which says that a bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So what it says, a bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker. Who signed? Signed by the maker, directing a certain persons to pay a certain sum of money. What it says, it directs the person to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person. From whom order? From a certain person to the bearer. किसको? To the bearer of the instrument. जो वो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, to the bearer. तो इसमें कहता है कि अगर देखेंगे तो 1881 के सेक्शन 5 के तहत डिफाइन किया गया. किसके तहत डिफाइन किया गया है? सेक्शन 5. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखित में होना चाहिए, ये मौखिक नहीं हो सकता है. ये हमेशा कैसा होगा? लिखित में होगा. ये एक ऑर्डर है पेमेंट करने का. क्या है? अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोलेंगे तो ये एक ऑर्डर है पेमेंट करने का, और उसमें कहता है कि ये कोई प्रॉमिस नहीं है, जैसा हमें प्रीमिशनरी नोट में देखा था.
यहाँ पर इसे सेलर इशू करता है और एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। हु इशूड इट? अ सेलर। सेलर इशू करता है, वो अनकंडीशनल ऑर्डर होते हैं। पेमेंट करने का ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए। इसमें पेमेंट करने का ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर को इसे साइन करना ज़रूरी है। जो इसे बना रहा है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो बनाता है, उसका साइन होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। जो पेमेंट अमाउंट होगा वो निश्चित होना चाहिए। जो भी पेमेंट अमाउंट है, फॉर एग्जांपल लेट से 1 लाख 2 लाख, तो वो निश्चित होना चाहिए। ठीक है। जिस तारीख को पेमेंट करनी है वो भी साफ साफ स्पष्ट तौर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा होना चाहिए। जब भी पेमेंट करना है तो वो बिल में साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निश्चित पर्सन को पेएबल होना चाहिए। जिस पर्सन के लिए मेकर बना रहा है उस निश्चित पर्सन को ही पे होगा, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेयरर को पेएबल होना चाहिए। और फिर अगर देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट या तो एक फिक्स डेट पर पेबल होगा या फिर ऑन डिमांड पेबल होगा। पहले भी जैसा भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि वो फिक्स डेट पे हो सकता है या फिर ऑन डिमांड हो सकता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक प्रकार का क्रेडिट है। सो वी कैन से दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ अ क्रेडिट। Now, after defining bill of exchange, we define promissory note. So, a promissory note is a financial instrument that contains a written promise by one party. What it says? It says that it's a written promise of one party, the notes issue or maker. किसके द्वारा? A notes issue or issuer or maker to pay another party, the notes payee, a definite sum of money either on demand or at a specified future date. तो वो डिमांड पे भी होगा और वो स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे तो ऑन डिमांड और स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में होगा। तो हिंदी में समझ लेते हैं कि वह पत्र जिसमें आधिकारिक रूप से यह लिखा होता है, क्या लिखा होता है आधिकारिक रूप से? यह लिखा होता है अमुक मिति में मांगना पर इतना धन इसके बदले में दूंगा। तो जितना धन अमुक मांगा गया हो उसको उतना धन देगा। वह राजकीय ऋण पत्र जिसमें शासन द्वारा प्रजा के लिए हुए ऋण का उल्लेख तथा प्रतिज्ञा लिखी रहती है कि मूल तथा सूद अमुक समय पर चुका दिया जाएगा। तो इसे ही कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो अगर देखेंगे कि क्या है, अगर नोट पे भी लिखा होता है, जैसे 500 के नोट पे, 10 के नोट पे, 20 के नोट पे, आई विल पे द सम ऑफ बेयर टू द इशूअर। तो अगर इसको नोट पे अगर लिखा हुआ देखते हैं तो वो क्या है? प्रोमिसरी नोट नहीं है। हाँ, वो गारंटी ज़रूर लेता है लेकिन वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। तो प्रोमिसरी नोट राजकीय ऋण पत्र होता है जो शासन द्वारा अपनी प्रजा से लिए हुए ऋण का उल्लेख या प्रतिज्ञा लिखी रहती है। जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो प्रोमिसरी नोट डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और चेक आप लोग जैसे जानते हैं, जो चेक हम लोगों का होता है वही चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे टोटल कितने सेक्शंस। तो सेक्शंस हम लोगों को पढ़ना है टोटल का 148 सेक्शंस और 17 चैप्टर्स। सो द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 148 सेक्शंस एंड 17 चैप्टर्स. In coming days, we will learn all these 148 sections, all the 17 chapters uh, of the Negotiable Instrument Act. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.